and welcome back to Ali's Tarot Cafe. We have a very special guest here with us today. It's Mr. Santa. So he's here to wish you all a very Merry Christmas and a very Happy New Year. So I wish that this year has been a little challenging, but I hope that it led to some good new beginnings and you had some cozy time with your loved ones. And I also wish that New Year brings new hope and joy and optimism for all of you there. So without any further delay, I'm gonna take out the cards for my Aries friends and see what is the tarot guidance for them for next week. All right Aries, तो जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है वो आया है अबंडेंस का कार्ड. मतलब यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ prosperity, wealth, knowledge in the coming weeks. Because if you see this figure, there is this figure of this man जो एक बहुत ही comfortable seat पे बैठा है and there is a book under him. मतलब you are going to gain wisdom, knowledge, skills. और sun and moon are both there. मतलब you have the source of energy from the sun and the calmness and tranquility from the moon. मतलब हर चीज़ balance में रहेगी. You will have enough to spend on yourself and your loved ones and take care of all your needs. Okay, so that's going to be a good abundant coming weeks for you. The second card that you've got is the dream card. So इसका मतलब है the tarot is telling you that regarding certain relationships आपके जो expectations हैं वो बहुत unrealistic हो जाते हैं कभी कभी, and what you start doing is you start comparing your relationship to something that was there many years back and you say that I have an ideal image of my relationship और जो मेरा partner है वो ideal image वो पहले ऐसा था but अब वो ऐसा नहीं है या नहीं है. तो you have to understand that there is nothing like a perfect relationship. और अगर आप हर टाइम वो पुरानी चीज़ों से कंपेयर करते रहोगे अपने रिलेशनशिप को तो आप डिसअपॉइंटेड ही रहोगे एंड यू नॉट बी एबल टू बी हैप्पी. एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी ऑब्वियसली द पर्सन अराउंड यू विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी. सो मेक श्योर कि आप अपने रियलिस्टिक रखें एक्सपेक्टेशंस एंड देयर इज सम कॉम्प्रोमाइज विच हैज़ टू बी डन ऑन बोथ साइड्स एंड थिंग्स चेंज ओवर टाइम. इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल, सो डोंट गेट वेरी अपसेट दैट इट इज़ नॉट perfect the way it used to be. People grow older, their viewpoints change, you just have to find the right balance with your partner. And third आपका आया है inner voice. मतलब next week you have to listen to your inner voice. It will guide you to the right path. The dolphins in this card mean that आपको peace और tranquility मिलेगी अगर आप अपनी inner voice को सुनेंगे. जो water है, moon है, ये सब का यही मतलब होता है कि अगर आप अपनी inner voice को follow करेंगे वो आपको बहुत ही पीसफुल स्पेस में लेके जाएगी. इट विल टेल यू द राइट वे टू गो. और जब आप अपने असली मन की आवाज़ को सुनोगे तो आप भी खुश रहोगे और आपका आने वाला वीक भी अच्छा रहेगा. और एक लास्ट थिंग कि इस कार्ड में एक डायमंड है. इस डायमंड का मतलब होता है कि आपको वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और वो जो वेल्थ ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिलेगी वो पीस वाला पैसा होगा. वो टेंशन वाली प्रॉस्पेरिटी या बहुत टेंशन या स्ट्रेस के बाद आपको वो पैसा मिल रहा है वो सब नहीं होगा. बहुत आराम से पीसफुल रहेगा. Alright, so that's a very nice week for you Aries. I hope you have a great week ahead. I'm going to take out the cards for my Taurus friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. Okay? Alright Taurus, so the first card that we have got for you is called existence card. मतलब आप आने वाले weeks में you will be very very comfortable with your own self, with your existence, with your own priorities and your own preferences. ये जो एक naked figure है और जो लोटस के लीफ पे बैठी है इसका मतलब कि आपको किसी भी तरह का फोबिया, इनहिबिशन, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे उसकी कोई टेंशन ना रहे कि आप बहुत ही पीसफुली अपने आप अपनी पाथ पे चलते जाएंगे. और ये लोटस का मतलब है कि आपको वो विजडम आ गई है कि आपको सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है. लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस पर आप ना सोचेंगे और अपने पाथ पे चलेंगे तो आपको बहुत ही पीस मिलेगी और बहुत खुश रहेंगे आप. और इस शूटिंग स्टार का मतलब है कि कुछ आपको गुड लक छोटा सा मिलने वाला है. कोई छोटी सी गुड न्यूज़, कोई लॉक्ड मनी कहीं जो आपको बहुत टाइम से पैसा फंसा हुआ था वो आ जाएगा, या तो कोई आपको लकी कोई फॉर्चून मिलेगा. तो गो एंड बाय दैट लॉटरी टिकट. ऑल राइट, नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट आपका कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस. इसका मतलब है कि जो आपके लाइफ में रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, जो करंट आपके पार्टनर हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. दे आर लाइक टू ट्रीज ग्रोइंग along with each other और उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब you guys have passed the test of time. You have been through your ups and downs, you've been through your good and bad times, but now you are together and you're happy and you become more like friends.
than just lovers. You become friends and companions in this journey of life. Only thing you need to take care is if you see these branches are getting into each other. So the only time जब आपके relationship में trouble तब आता है when you don't give enough space to each other. So you have to make sure that you give space to each other and enjoy this really beautiful nurtured strong relationship that you have made over these years. All right, third आपका कार्ड आया है द माइजर कार्ड. इसका मतलब है कि आप कमिंग वीक्स में आपके पास जो भी धन है, वेल्थ है, आप उसको बटोरेंगे, बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे चीज़ों में, ताकि आप उसको जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके लव्ड वंस को या आपको, आप उसको यूज़ कर सके वो पैसा. उसके वजह से क्या हो सकता है कि कभी कभी आपके आसपास के लोग आपको कंजूस परसीव करें, माइजर परसीव करें, बट आप मत टेंशन लीजिए. आपकी जो अभी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप बचा रहे हैं वो हमेशा बाद में जाके किसी अच्छे काम के लिए यूज़ होंगे. सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट अदर्स मे कॉल यू माइजर. ये माइजर होना अच्छा है आपके लिए. ऑल राइट, और आई होप you have a good week ahead. I'm gonna take out the cards for my Gemini friends now and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. All right, so Gemini, the first message for you is the card called participation. मतलब आने वाले वीक्स में आप बहुत ही एक्टिव रहेंगे. आप इवेंट्स में जाएंगे, पार्टीज में जाएंगे, वॉलंटियर करेंगे कुछ चीज़ों के लिए कि हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी, अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज लगाऊंगा या लगाऊंगी. उससे आपको ऑब्वियसली यू विल बी ऑल पेप्ड अप, यू विल बी एनर्जेटिक, यू विल हैव अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन कि हाँ मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ. बट आपको ध्यान रखना है कि उस पार्टिसिपेशन के चक्कर में आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो जाए, आप थक ना जाओ. बिकॉज ये 4 हाथ हैं, ये चारों हाथ लुटा रहे हैं. तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ओवर इंडल्ज ना कर जाएं. स्पेशली जब आपके पैसों की बात आती है तो जितनी आपकी चद्दर है उतने ही पैर पसारे और अपना ओवर स्पेंडिंग से बचे. और राइट, सेकेंड आपका कार्ड आया है रिसेप्टिविटी एंड बियॉन्ड इल्यूजन. ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. दीज आर द कार्ड्स ऑफ द डिवाइन. तो आपको डिवाइन जो लॉर्ड हैं वो कह रहे हैं कि आई एम देयर बियॉन्ड इल्यूजन. मतलब मोह माया को छोड़ के प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट यू वांट, व्हाट योर life's path is, because the Lord is saying that I have the golden touch. I will make sure that I create beautiful opportunities for you, and I will make sure that I give you good wealth, prosperity, knowledge and wisdom. But for that to happen, वो होने के लिए you have to be receptive, you have to be open, you have to be open to ideas, you have to be open to experiences, you have to be open to even bitter experiences, you have to be open to the energy of the world that the world is planning to give to you. तो ये arms wide open का मतलब है you have to be open to all kind of experiences without any phobia, डर, भय, किसी भी तरह का फोबिया या इनिबिशंस को छोड़ के ये जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, ये लोटस जो है, इसका मतलब जो लॉर्ड आपको कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज मैं आपको दूंगा, एक्सपीरियंसेस आपको दूंगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे. ऑल यू नीड टू डू इज कीप योर आर्म्स वाइड ओपन, रेडी टू रिसीव द एनर्जी आई वांट टू गिव टू यू. तो यू हैव टू बी रिसेप्टिव ऑफ दैट, दोज एक्सपीरियंसेस एंड दैट एनर्जी. और ब्लू और डायमंड से इस कार्ड में मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड पीस. तो अगर आप मोह माया को छोड़ के डिवाइन की आवाज़ सुन के उनकी एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारे गेन्स, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी ट्रैंक्विलिटी, पीस और सेंस ऑफ पर्पस आएगा आपके लिए. ऑल राइट जेमिनी, आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय कैंसर फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट वीक. ऑल राइट कैंसर. Okay, Cancer. So there is some change coming in your life which is going to really move the world around you. ठीक है, तो चेंज का मतलब है, इस कार्ड का मतलब है आपकी लाइफ में एक बहुत सॉलिड चेंज आने वाला है. यस, जैसे कि सारे चेंजेस होते हैं, ये चेंज कंफर्टेबल नहीं होगा इनिशियली और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ. बट प्लीज़ रिमेंबर, चेंज इज़ द नेम ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू गो विद इट. यू हैव टू, एंड द सूनर यू एक्सेप्ट इट, द सूनर यू मेक पीस विद इट, द मोर द बेटर इट विल बी फॉर यू. और आप उस चेंज को सीमलेसली, स्मूथली उसके थ्रू जा पाएंगे. बट जितना आप उसको रेजिस्ट करेंगे और उसके लिए
ओपन नहीं रहेंगे, उतना ही आपके लिए वो चेंज जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बिटर रहेगा, बहुत स्लो रहेगा, और एक कब चेंज होगा, स्टक इन द मिडल। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो चेंज को एम्ब्रेस करना है, वो चेंज आपके लिए अच्छा है। सो इट्स लिटिल अनकम्फर्टेबल बट इट विल फाइनली एंड एंड इट विल एंड एंड गुड थिंग, सो बी रेडी फॉर दैट चेंज। सेकेंड आपका कार्ड आया है प्रोजेक्शंस कार्ड। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपकमिंग वीक में, ऑलराइट, कि आप लोगों पे भरोसा आसानी से ना करें, उनको थोड़ा वॉच करें, स्पेशली जब पैसों की बात आती है, बिजनेस वेंचर्स की बात आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग हैं जो अपीयर कर रहे हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, बट दे आर नॉट, दे डोंट हैव योर इंटरेस्ट इन देयर माइंड। वो आपको धोखा दे सकते हैं। तो आपको अपने लव्ड वंस का एडवाइस लेके ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने, और अपने सारे प्लान्स लोगों को इतनी जल्दी से नहीं बताने, स्पेशली पीपल यू हैव जस्ट कम टू नो, ओके। थर्ड आपका कार्ड आया है राइटनेस कार्ड। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी हार्ड वर्क की थी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड वीक्स, वो फाइनली आपको आपका रिजल्ट देंगी, और आपके जो वो मेहनत के फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो पक पक के अभी गिरेंगे, और आपका अब टाइम है कि उन फ्रूट्स को आप स्वीट फ्रूट ऑफ लेबर को एंजॉय करें, ठीक है। तो ऑल योर एफर्ट्स हैव नॉट गॉन वेस्ट, दे हैव नाउ कम टू फ्रूटेशन, और आपको उसके रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस मिलेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू हैव अ ग्रेट वीडियो अहेड, टेक केयर। ऑलराइट लियो, सीजन्स ग्रीटिंग्स टू यू, एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या टैरो मैसेज है फॉर नेक्स्ट वीक। All right, Leo. So you have got an exhaustion card. So you are the message for you is आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ सफ़र करने वाली है। सो यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ, यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस, otherwise you sometimes you feel so exhausted, you feel stuck in the middle and there's so many machinery around you, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहा है, जिससे आपके हेल्थ पे बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है, आपके हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो यू हैव टू, स्पेशली अभी हॉलीडे सीजन है, सो शट दैट लैपटॉप एंड take rest, do some exercise, do some yoga, spend some time with your family, just switch off your mind for some time and get that break. Otherwise this card also means that for certain people there could be some medical procedures in store, उनको medical problems हो सकती है, उनकी सर्जरीज हो सकती हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, और आपके एग्जॉस्टन से आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो यू हैव टू स्टॉप नाउ एंड मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। सेकेंड आपका कार्ड आया है अवेयरनेस एंड सॉरो कार्ड। तो इसका जो अगर मैं कोरिलेशन करूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी कभी कभी लगता है कि आई एम ऑल अलोन, ठीक है, दुनिया ने ये दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए हैं और मेरी लाइफ में अभी सॉरो ही सॉरो है, या ये इंसिडेंट्स ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। बट आपको समझना है और वो अवेयरनेस आपको अपनी लाइफ में लानी है, और वो अवेयरनेस आपको आएगी भी कमिंग वीक्स में कि आपके लिए ये एक्सपीरियंसेस ज़रूरी थे, और अब you're not alone, you are in yourself a power house, और आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले सकते हैं। और जब वो आपको अवेयरनेस आएगी, और वो आएगी पक्का आपको, उस अवेयरनेस से क्या होगा, आप ये जो पुराने आपकी आंखों पे पर्दे थे, वो कर्टन्स थे, वो आप हटा के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, काम इमेज इमर्ज हो रही है। तो इसका मतलब कि आपको वो अवेयरनेस आएगी और आपको समझ आएगा कि ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस मेरे लिए ज़रूरी थे। नाउ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन माई सेल्फ, आई कैन टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, और एंड ऑल्सो यू विल गेट दैट सेंस ऑफ पर्पस कि अब मुझे कहाँ जाना है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ है, कौन है मेरे वेल विशर्स, हु आर द रियल पीपल आई वांट टू टेक अलॉन्ग विद मी इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, और वो अवेयरनेस आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। ऑलराइट लियो, सो आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड. Just take care of your health and take some break, all right, in this holiday season especially. All right, I'm going to take out the cards for my Virgo friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. So let me just give me a second. I can give it a good shuffle. All right, Virgo. ऑल राइट वर्गो, सो पता नहीं इस हॉलीडे सीजन में आपको को इतना स्ट्रेस और पॉलिटिक्स देने के लिए कौन रेडी हो रहा है, बट यू आर गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस अराउंड सर्टन थिंग्स, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे करने की कोशिश भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जब आप थोड़े से खुश होते हो कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे फेवर में जा रही हैं, कोई तो आपको आके वो स्ट्रेस, कहते हैं ना वो स्ट्रेस इनिशिएटर, वो एक कोई आके ये मंकी वो बबल को बर्स्ट कर रहा है नीडल से, तो कोई आपको इतना स्ट्रेस दे जाता है आके, कोई चीज़ पे आप स्ट्रेस हो जाते हो एकदम से, तो वो स्ट्रेस मत लीजिए,
थोड़ा खुश रहा कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो जब भी आप बहुत खुश होते हैं, अरे ये हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, और वो छोटी सी चीज़ वो आपकी नहीं हुई उस लिस्ट में से, तो आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे स्ट्रेस हो गया, वो काम मेरा क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड आपका कार्ड आया है पॉलिटिक्स कार्ड। इसका मतलब कि कुछ लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स करने के लिए रेडी बैठे हैं। उन्होंने एक अपना नकाब रखा है, अपना मास्क रखा है आपके आगे कि आपके वेल विशर है, एंड यू नो दे वांट टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, एंड दे वांट टू कन्विंस यू कि दे आर फॉर योर बेटरमेंट। बट आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इस तरह की किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहें, ठीक है। चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपका होम है, आपको ये पॉलिटिकल लोगों से जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, आपको नेगेटिव एनर्जी दे सकते हैं, उनसे दूर रहिए। आप अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, हार्डवर्क कीजिए अपना, और अपना आराम से काम करके अपनी लाइफ की जर्नी पे जाइए, और ये सब स्ट्रेसफुल और पॉलिटिकल लोगों से दूर रहिए, ठीक है। एक आपके लिए गुड न्यूज़ है वर्गो की कंप्लीशन कार्ड है। मतलब कुछ काम जो आपका बहुत टाइम से अटका पड़ा था, या उस चीज़ में आपकी बहुत एनर्जी, पैसे, टाइम बहुत जा रहा था, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत ड्रैग हो रहा था, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक वो काम, और उससे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और एट द सेम टाइम आप थोड़े से वो भी रहोगे कि अब मैं क्या करूँ, अरे मैंने इतना सारा टाइम इस चीज़ में लगा दिया कि अब मैं थोड़ा सा वैक्यूम आ गया मेरी लाइफ में। सो इट्स ओके, एंजॉय द वैक्यूम। वो बड़ा जो काम है उसको कंप्लीट होने की खुशी को मनाइए, और नया काम शुरू होने के लिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए। ऑल राइट वर्गो, सो आई होप यू हैव अ ग्रेट week ahead and I wish you a great new year. I'm gonna take out the cards for my Libra friends and see उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. All right Libra, let's give this a good shuffle. ओके लिब्रा, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल वीक होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, बट डोंट वरी, इट विल पास। तो आपके कार्ड्स आए एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस एंड सॉरो। मतलब कि कुछ आपको बिटर एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं जो आपको कहते हैं ना, वो थॉर्न्स की तरह चुभ जाएंगे, नो कांटों की तरह चुभ जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्या पता वो फैमिली लाइफ में हो, क्या पता आपके वर्क प्लेस में हो, बट कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बहुत बिटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बट आपको अंडरस्टैंड करें कि इस कार्ड का है नाम एक्सपीरियंसिंग। मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग द जॉयज एंड द सॉरोज yes, they leave with that pinch of salt in our mouth, but those sorrows teach us, they train us with life lessons कि अब हमें क्या करना है, इस एक्सपीरियंस से हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ना हो, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो उन एक्सपीरियंसेस को अपनी टेक देम इन योर स्ट्राइड, ओके। ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंसेस की वजह से यू विल फील डिसअपॉइंटेड, सॉरो की दुनिया ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए एंड आई एम ऑल अलोन। प्लीज़ रिमेंबर लाइफ अ फुल सर्कल, और ये सब चीज़ें खुशी कम चलता रहता है, तो आप उस पर स्ट्रेस मत लीजिए। और क्योंकि आपको कुछ लोग आके आपके वो स्ट्रेस देंगे, आपका वो बबल बर्स्ट करेंगे जब आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुश हो, हाँ मेरी चीज़ें मेरे तरीके से चल रही है, बट एकदम से कुछ हो जाता है और आपका वो बबल बर्स्ट हो जाता है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, गुड थिंग्स विल कम बैक अगेन। और जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे लिब्रा नेक्स्ट वीक के, उनसे देखिए कि आप उससे क्या सीख सकते हैं, और आप अपनी लाइफ के लिए और बेटर क्या कर सकते हैं उन एक्सपीरियंसेस से। तो प्लीज़ टेक देम एज मच पॉजिटिवली। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट ट्राई टू टेक इट एज मच पॉजिटिवली एज यू कैन, गिविंग अ लॉट ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू लिब्रा। आई एम गोना टेक आउट द कार्ड्स फॉर माय स्कॉर्पियो फ्रेंड्स एंड सी कि उनके लिए क्या टैरो गाइडेंस है। All right, Scorpio. All right, लगता है स्कॉर्पियो आप में से कई लोग तो बिल्कुल बाहर कंट्री में कहीं तो जाने वाले हैं, आपका वो टाइम आ गया उड़ने का। All right, so you've got this card called First Understanding and this Trust card, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको ये टैरो मैसेज मिल रहा है कि आपका अब टाइम आ गया है उड़ने का, ठीक है। The opportunities are in front of you, the time has come for you to take that jump and fly away and not be like this bird in the cage, just having that वो calculated risk आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक वो आप calculated risk नहीं लोगे, तो आपके जो peers हैं, competitors हैं, जो सारे खुले आसमान में enjoy कर रहे हैं, fly कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और आप इस केज में रह जाएंगे। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, और आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और ऑल्सो थर्ड आपका कार्ड आया है मैच्योरिटी।
इसका मतलब है स्कॉर्पियो कि आपको मेच्योर डिसीजन लेना है। थोड़ा सा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से आपने क्या गेन किया है वो मेच्योरिटी से आपको डिसीजन लेना। और जब आप वो मेच्योरिटी से लेंगे डिसीजंस को लाइफ में अपकमिंग वीक्स में, तो आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, रेनबो, फ्लावरिंग, ये सब आपके आपकी तरफ आएंगे। बट आपको थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क, अपनी पुरानी चीज़ों से एक्सपीरियंसेस को एक्सट्रैक्ट करके वो अपॉर्चुनिटी लेके उड़ने का टाइम आ गया है स्कॉर्पियो। सो योर ग्रेट थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ and take that calculated risk. Use your maturity and the advice of your loved ones and go ahead and take those opportunities. All right, I'm going to take out the cards for my Sagittarius friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. All right, Sagittarius. Let's see. Let's give this a good shuffle. ऑल राइट, सो सैजिटेरियस फर्स्ट तो आपका मैसेज एक बहुत क्लियर है कि यू हैव बिन गोइंग विद द फ्लो फॉर फार टू लॉन्ग। आप अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं और आपने रिस्क लेने बंद कर दिए, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी बंद कर दी, एडवेंचर्स को इम्ब्रेस करना बंद कर दिया है। सो द कार्ड इज सेइंग यू हैव टू स्टॉप गोइंग विद द फ्लो ऑफ थिंग्स, यू हैव टू swim against the current, you have to try new things, you have to try new adventures, you have to break old patterns, क्योंकि वरना अगर आप सेम चीज़ें रोज करते रहेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे पर्सनली, प्रोफेशनली। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू समथिंग डिफरेंट, यू चैलेंज योर सेल्फ एवरी डे। सेकेंड थर्ड आपका कार्ड आया है द ड्रीम एंड फ्रेंडलीनेस टुगेदर। तो इसका मेरा कोरिलेशन ये है कि आपकी लाइफ में जो अभी रिलेशनशिप है, ठीक है, जो आपका लव रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यू हैव ग्रोन टुगेदर एंड यू हैव बिन टुगेदर थ्रू टफ टाइम्स, थ्रू गुड टाइम्स, and the roots of this relationship are very strong. But what mistake you do sometimes is you fantasize about the state of your relationship now to compare to when it started initially, and you feel that all right, this person used to do so many things for me, वो पहले मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें करता है, वो अब नहीं करता या करती है, तो my perfect relationship is not perfect anymore. तो जब तक आप ऐसे सोचते रहेंगे तो वो आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाएगा, बिकॉज एनी रिलेशनशिप over a period of time changes, the expectations change, the way you get used to of each other. So you have to just realize कि अपने realistic रखिए expectations अपने partner से, and make compromises wherever required and work through your relationship, but don't idealize relationship and set very high, set the bar very high for your partner कि वो उस बार को कभी मीट ही ना कर पाए, और जब तक वो उस बार को मीट नहीं कर पाएगा आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहेंगे. सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ. ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, Sagittarius, in that respect. Alright, I'm gonna take out the cards for my Capricorn friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright, Capricorn. All right, Capricorn, new vision, adventure and patience. So that's a very lovely card. So the first thing for you is that you're going to have in the coming week a completely new vision around yourself and around your life. You're going to leave all the old patterns and behaviors behind, and you're going to be very, very strong, very, very clear about what you want to do and where you're headed, which is a very, very beautiful and powerful thing for you in the coming weeks. And secondly, with that new vision, you'll also have a new sense of adventure. तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं एक चाइल्ड की तरह एडवेंचरस, क्यूरियस रहूँगा, मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा, एंड दैट सेंस ऑफ एडवेंचर विल टेक यू टू places, it will give you opportunities, and you will go towards a rainbow of happiness with that open-mindedness and curiosity and sense of adventure. So that's really very, very good for you in that sense, Capricorn. And third आपका कार्ड आया है पेशेंस कार्ड. मतलब कि आपने जो भी चीज़ों में आपने अभी कमिंग लास्ट फ्यू मंथ्स में या वीक्स में एनर्जी डाली थी, और अब आप सोच रहे हो कि वो उस स्पीड पे क्यों नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड पे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि कीप पेशेंस. ठीक है, आपने जो भी एफर्ट्स की थी दे हैव borne fruit. Now it's the time for you to sit back and let time take over, and things will happen. Yes, they may be a bit slow and slower than you expect them to be, but they will happen. And especially for couples
who are trying for a child, this is a very beautiful card for you. This means that keep patience, you are soon going to get a good news, and it's going to make you very happy and your family members very happy. So it's just a matter of having patience and not losing hope. All right, so that's really beautiful messages for you, Capricorn, for next week. I'm going to take out the cards for my Aquarius friends and see कि उनके लिए क्या tarot guidance है. All right, Aquarius. Aquarius, so the first card that has come for you is isolation card. इसका मतलब कि कुछ चीज़ों को लेके you feel very very alone, isolated, you're not able to express your sorrow या share your feelings with someone. आप सबके सामने ऐसे cold ice like exterior रखते हैं कि हाँ मुझे इन experiences से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, I'm very strong inside, I don't need to, I'm not sad, can you see me sad? No, I'm not. But अंदर से यू आर वेटिंग कि कोई आपसे वो बात करे, आप उसके साथ शेयर करो, आप अपने अंदर का जो भी पेंटअप जो भी बात है वो किसी के साथ शेयर करके हल्का फील करो. तो प्लीज़ डू दैट. ऑल राइट कि एक्वेरियस, आप जब आप करेंगे तो आपके आसपास की जो सारी स्नो है आइस है वो मेल्ट हो जाएगी एंड यू विल फील नाइस, यू विल फील लाइट कि आपने वो शेयर किया. एंड इट इज़ नॉट क्रिमिनल to cry, it is not criminal to feel that you are hurt and that you are weak in some spots. It's absolutely okay and human. So feel good and light by talking to someone about it. सेकंड थर्ड आपका कार्ड है एडवेंचर और पेशेंस. तो आपको कह रहा है टैरो कि आपके बहुत ग्रेट एडवेंचर्स और न्यू बिगिनिंग्स आने वाले हैं. All you need to do is keep a childlike innocence and sense of curiosity and sense of adventure, and good things are going to happen to you. You're going to head towards that rainbow of happiness. तो बहुत अच्छी अच्छी न्यू trips, challenges, adventures आने वाले हैं. And also जो भी आपने पुराने efforts किए हैं वो कहीं वेस्ट नहीं हुए हैं, वो चीज़ें होने वाली हैं. You just have to keep a sense of patience. ठीक है, वो चीज़ें मटीरियलाइज होंगी. आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं और आपके एक्सपेक्टेड स्पीड पे नहीं चल रही हैं या नहीं मटीरियलाइज हो रही. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो हैव patience, they will happen. And for couples who are trying for a child, this is a very good card for you. That means you're soon going to get very good news. So just have patience and don't lose hope. Hope is a very beautiful thing to have. Alright, so with that Aquarius, I'm going to take out the cards for Pisces now and let's see कि उनके लिए क्या tarot guidance है for next week. Alright Pisces, let's give this one last good shuffle. Alright, so Pisces, you've got a couple of emotional cards for next week. So first card you got is guilt card. मतलब कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत guilty feel करेंगे, but आपको ये कार्ड कह रहा है कि please don't let this guilt rule you, rule your head, okay, and overpower you. You have to understand that it is very human. It is very very human to make mistakes and everybody does that. You cannot keep punishing yourself with those guilt feelings. People who love you, जो आपसे सच्ची में आपके well wishers हैं, जो आपको प्यार करते हैं, they will accept you, they will accept your flaws and they will forgive you. So stop punishing yourself so much over certain things. सेकेंड आपका कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड. मतलब कुछ चीज़ों को लेके आपने बहुत टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है. क्या पता आपके पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे या एनर्जी नहीं थी या गट्स नहीं थे या टाइम नहीं था, बट आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और करते चले आ रहे हो. बट अब टाइम आ गया है कि आप वो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में भी तो आगे बढ़ना है और जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए स्पेस बनाएंगे. आपको हर टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो उन चीज़ों को मत करिए और आगे बढ़िए अपने कॉम्प्रोमाइज़ को छोड़ के. एंड द पीपल हु रियली केयर फॉर यू, दे विल अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव टू कीप मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस ऑल द टाइम. एंड थर्ड आपके लिए पाइसेस मैसेज बहुत क्लियर है, मोमेंट टू मोमेंट. सो दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट जो बीत गया वो बीत गया और जो नहीं आया है, जो फ्यूचर है, वो हमारे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है. तो आप अपनी इस मोमेंट में जो आपको भगवान ने दिया है, दिस प्रेजेंट करंट लाइफ दैट यू हैव, मोमेंट टू मोमेंट जिए. Live for the moment, enjoy the moment that you have. Don't overthink about what has happened and what is going to happen. And that does not mean that you are not ambitious, you don't plan, you don't save, you do all of that stuff. But do all of that stuff without getting overworked, alright? That's the whole point. Just like this man who is enjoying and skipping from one stone to another, and he's free, at the same time he's stable, he's not falling off. So आप stable रहिए, आप अपने sense of adventure रखिए, आप अपने sense of planning भी रखिए. But don't miss out on the current moment that you have. Alright, so that's the great
message for you Pisces, and I hope you have a Merry Christmas and a very Happy New Year. So thank you everyone, and please don't forget to like and subscribe and share this video so that you can spread the positivity and the tarot message around. All right, until next time, take care. Bye.